Hello everyone, myself Shafiq Khan. Today we will learn about differentiation of parametric function. Parametric function किसको बोलोगे? Suppose that one variable x is depends on t, such as x is ft and y is the function of t. Suppose that y is gt, then dy by dx is dy by dt upon dx by dt. Actually, this is a theorem. If x and y both are differentiable function of t and y is differentiable function of x, then dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt. ये फार्मूला यूटिलाइज होगा. dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt. But if x depends on another variable, suppose that theta, x is the function of theta and y is the function of theta, then dy by dx will be dy by d theta upon dx by d theta. For example, first question देखिए, exercise 1.4 first problem. X is 80 square, then differentiation of x with respect to t dx by dt is 280. Utilize the formula x power n type. Derivative of t square is 2t, so complete is 280. Similarly, derivative of y function is y is equal to 280, then dy by dt is just 2a because of derivative of t with respect to t is 1. So 2a into 1 is 2a. Formulate dy by dx, dy by dt upon dx by dt. Substitute the values of dx by dt and dy by dt. You got simple result. 2a cancel out and 2a cancel out. dy by dx is 1 by t. अभी यहाँ पर another function, different function देखोगे. x is question number 1 third part. X is depends on m, means x is function of m and y is also function of n. Then dy by dx is dy by dm upon dx upon dm. तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू m किया जाएगा. पैरामीटर m हो गया. तो फर्स्ट x इज अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी एम 1 अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर. ये बाय यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स के थ्रू. यू नो दैट डेरिवेटिव अंडर रूट एक्स क्या होता है? 1 अपॉन टू रूट एक्स. सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एफ एक्स 1 अपॉन टू रूट एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बाई चेन रूल. तो हियर look, derivative of under root 1 upon 2 under root m square, but by chain rule derivative of interior portion a square plus m square is 0 plus 2m. By chain rule 0 plus 2m, but no needs to write 0 because of 0 plus 2m is 2m, so write only 2m. 2 cancel out. This result is only m upon under root m square upon under root a square plus m square. Same thing, y is equal to log of a square plus m square. Derivative of log x is 1 upon x. Derivative of log of fx, differentiation of log of fx with respect to x, 1 upon fx. Applying chain rule, derivative of fx means f dash x. तो सेम रूल यहाँ पर देखोगे कि log का डेरिवेटिव क्या मिला? 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एंड देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज 0 प्लस 2m, तो राइट ओनली 2m. कंप्लीट रिजल्ट इज 2m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर. 2m plus m square. Now formulate dy by dx is equal to dy upon dm upon dx upon dm. Substitute both values. Main concern cancellation of these two
रिजल्ट्स एम कैंसल आउट, 2 रहेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर देयर एग्जिस्ट इन न्यूमरेटर बट इन डिनोमिनेटर विदाउट अंडर रूट ओनली ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर. So these two terms after cancellation denominator becomes under root 1 plus a square plus m square. हमने साइड में देखो एक्सप्लेन किया हुआ अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स मेथड को कैसे 1 अपॉन अंडर रूट एक्स हो रहा है उसको देख सकते हो. अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स, अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स लिख सकते हो. एक्स को क्या लिखोगे? अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, दैट इज़ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स. तो इसी रूल से यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एंड बट इन डिनोमिनेटर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ओनली. ये विदाउट रूट है और न्यूमरेटर में देखोगे अंडर रूट में है तो दोनों कैंसिल होके क्या मिलेगा? ओनली अंडर रूट. तो फाइनल रिजल्ट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर. Now take another problem. Suppose that x is 1 minus cos theta and y is b into theta minus sin theta. Simple differentiation. Here x is the function of theta and y is also function of theta. So these two functions differentiate with respect to theta. First is dx by d theta is equal to a. Derivative of 1 is 0. And derivative of cos theta, you know the derivative of cos theta minus sin theta, so plus sin theta convert into plus sin theta. पर ऑलरेडी क्वेश्चन में देखोगे माइनस साइन थीटा था तो वहाँ पर अभी क्या हो जाएगा? ये प्लस साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा इज माइनस साइन थीटा. तो 0 प्लस साइन थीटा ओनली यू गॉट साइन थीटा, a इंटू साइन थीटा. सेम वे डी वाई बाई डी थीटा, डेरिवेटिव ऑफ थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा दैट इज 1 and derivative of sin theta with respect to theta is cos theta. So you got dy by d theta is 1 minus cos theta. dy by dx फॉर्मुलेट करिए, dy by d theta upon dx upon d theta, b into 1 minus cos theta upon a sin theta. Substitute of formula 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2. ये हाफ एंगल फार्मूला है, ये आपको बाई हार्ट करना रहेगा. कॉस थीटा को हाफ एंगल फार्मूले में जब प्रिपेयर किए जाते हैं तो वहीं से ये फार्मूला बनाया गया है. 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हाफ एंगल फार्मूले के अकॉर्डिंग. सिमिलर वे इन डिनोमिनेटर कन्वर्ट इनटू हाफ एंगल फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 कैंसल, साइन थीटा इन न्यूमरेटर देयर इज स्क्वायर ऑफ साइन थीटा बाई 2, स्क्वायर है तो मीन साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, दो पार्ट हैं तो एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल होगा, जो बाकी रह गया वो एक साइन न्यूमरेटर में रह गया, डिनोमिनेटर में कॉस रह गया. तो दिस इज साइन थीटा अपॉन कॉस, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 कन्वर्ट इनटू tan थीटा बाई 2. तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ. डी वाई बाई डी एक्स इज b बाई a tan थीटा बाई 2. नाउ अनदर टाइप प्रॉब्लम बट बोथ आर पैरामेट्रिक फॉर्म. y is cos inverse 2t upon 1 plus t square. y is equal to sec inverse under root 1 plus t square. तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जहाँ डेरिवेटिव सिखाया गया वहाँ पर चेक किए होंगे कि ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई पहले किया जाता है देन डिफ्रेंशिएट किया जाता है. तो देख सकते हो यहाँ पर cos इन्वर्स सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल टू tan थीटा और यहाँ दोनों ही वेरिएबल x एंड y बोथ के लिए सेम सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है तो दोनों को सेम करो और अगर पॉसिबल ना हो तो सेम नहीं किए जाएंगे. एक पार्ट के लिए अलग सब्स्टिट्यूशन एंड देन रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा. सिमिलरली फॉर वाई अनदर अगर सब्स्टिट्यूशन करना रहेगा तो वहाँ अलग करेंगे, बट ध्यान रखना है कि अगर सेम क्वांटिटी सब्स्टिट्यूट करने से दोनों ही सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो सेम सब्स्टिट्यूशन दोनों में एट ए टाइम कर सकते हो. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों में ही tan थीटा रखने से फार्मूला बन रहा है, इसलिए दोनों में ही tan थीटा पुट किया जा रहा है. पुट t इज इक्वल टू tan थीटा कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो हियर x इज कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू सेक इनवर्स सेक थीटा. कैसे बना वो देखो जरा आगे. y इज इक्वल टू
y is equal to sec inverse. In the place of t, put tan theta. So you have tan square theta. Now another line, y is equal to sec inverse 1 plus tan square theta is sec square theta. ये आइडेंटिटी है sec square theta. ये लोअर स्टैंडर्ड से सीखते चले आए हो, 9th स्टैंडर्ड से ही. 1 plus tan square theta is sec square theta by under root. So square and under root ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, only sec theta. And now formulate sec inverse sec, cancel out, only theta. Y is equal to theta. You can put the y as theta. थीटा की जगह पे यहाँ पर रख सकते थे अगर चाहते तो. यहाँ पर x इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टू थीटा. थीटा की जगह पे y भी रखा जा सकेगा. एंड दैट डिफ्रेंशिएशन बाय इम्प्लीसिट फंक्शन, जो इससे प्रीवियस एक्सरसाइज पढ़े हो, एक्सरसाइज 4.1.3 एक्सरसाइज जो स्टडी किए हुए हो कि डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वो स्टाइल से भी कर सकते हो. हमने ऐसा नहीं किया, दोनों को मिक्स नहीं किया, सेपरेटली किया हुआ है ताकि वो पैरामेट्रिक फार्मूला यूटिलाइज कर सकें. तो यहाँ पर x इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टू थीटा मिला सिंप्लीफाई होने के बाद. y इज फंक्शन ऑफ थीटा. बोथ वेरिएबल्स, नाउ x एंड y बोथ वेरिएबल डिपेंड्स ऑन थीटा. दोनों ही थीटा पर अभी डिपेंड हो रहे हैं. इसका मतलब हुआ नो नीड्स टू रीसब्स्टिट्यूशन ऑफ द वैल्यू ऑफ थीटा. थीटा को बहुत मेनी प्लेस पे देखे होंगे कि ऐसा थीटा की वैल्यू tan इनवर्स t वापस रिटर्न रखते हैं, बट वो उस सिचुएशन में कंपलसरी है जहाँ पर दोनों के पैरामीटर्स डिफरेंट हों. अगर सेम है तो वापस रीसब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्ट ऐसा समझोगे कि नाउ x एंड y हैविंग न्यू पैरामीटर थीटा. दोनों के लिए अब नए पैरामीटर्स थीटा हो चुके. अभी t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने की जगह पे थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे. dx बाई डी थीटा. पाई बाई टू इज कॉन्स्टेंट क्वांटिटी. पाई बाई टू, x इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टू थीटा. तो dx बाई डी थीटा इज 0 माइनस टू बिकॉज ऑफ थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा. डिफ्रेंशिएट करोगे तो ओनली 1 मिलेगा. तो 0 माइनस टू इज माइनस टू. एंड y इज द फंक्शन ऑफ थीटा, ओनली थीटा. y इज इक्वल टू थीटा. सो dy बाई डी थीटा इज 1. तो अभी dy बाई डी थीटा इज 1. फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स इज dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा. बोथ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. dy बाई डी थीटा की जगह पे 1, dx बाई डी थीटा की जगह पे माइनस टू. सो गॉट फाइनल आंसर माइनस 1 बाई टू. dy बाई डी एक्स इज माइनस 1 बाई टू. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. अभी नया क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहे थे एज इट इज़ है, दोनों सेम ही हैं, लेकिन वहाँ पर dy बाई डी एस कैलकुलेट करके छोड़ देना था. यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर dy बाई डी एक्स पूछा हुआ. फाइंड आउट द dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट पाई बाई 6. डिफरेंट क्वेश्चन में अलग अलग रहेगा. क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट में एट द पॉइंट पाई बाई 6 कहा गया है. x इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. डी एक्स अपॉन डी थीटा, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक स्क्वायर. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी स्क्वायर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या समझोगे, कोसेक थीटा होल स्क्वायर. अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स के रेस्पेक्ट में 2x होता है. एज इट इज हियर डेरिवेटिव ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इज 2 कोसेक थीटा. 2 कोसेक थीटा. एंड डेरिवेटिव ऑफ कोसेक थीटा, अभी तो पावर का डिफरेंशिएशन किया हो ना, कोसेक स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव 2 पहले आ गया, एक पावर कम हो गया. एक पावर कम मतलब 1 पावर रह गया, तो 1 लिखा नहीं जाता है. तो ओनली क्या हुआ, कोसेक स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव 2 कोसेक थीटा. नाउ अप्लाइंग चेन रूल, डी बाई डी थीटा ऑफ कोसेक थीटा हमने डायरेक्टली किया है. और आप भी ट्राई करो कि स्टेप मिनिमाइज हो, बहुत ज़्यादा स्टेप की ज़रूरत नहीं है. डेरिवेटिव ऑफ कोसेक थीटा इज माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा. ये जो हम यहाँ पर डायरेक्ट किए हुए हैं, अगर ऐसे ही क्वेश्चंस स्टार्टिंग क्वेश्चंस होते जो फर्स्ट एक्सरसाइज स्टडी किए हुए हो, कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, यहाँ पर तो क्लियरली दिख रहा है ना, पैरामेट्रिक फंक्शन है, एक्स इज डिपेंड्स ऑन थीटा, वाई डिपेंड्स ऑन थीटा, दोनों के लिए अलग अलग वेरिएबल दिए हुए हैं, टी थीटा पैरामीटर है. तो यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हो. लेकिन अगर वही एक्सरसाइज फर्स्ट होती तो आपको डिटेल में करना होगा.
डी बाई डी थीटा ऑफ कोसेक स्क्वायर लिखना है, फिर 2 कोसेक थीटा के बाद डी बाई डी थीटा ऑफ कोसेक थीटा उसको भी मेंशन करना है। यहाँ की तरह डायरेक्ट नहीं लिखना है। तो अगर क्वेश्चन शॉर्ट हो यानी स्टार्टिंग के हैं, बेसिक हैं, तो उसको डिटेल में किया करो। और अगर कहीं पर लॉन्ग क्वेश्चन हो रहे हैं या अप्लीकेशन हो रहे हैं, अभी वो टॉपिक का अप्लीकेशन यहाँ चल रहा है, तो इसके लिए माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक थीटा, डायरेक्ट लिखा गया। फाइनल आंसर क्या मिलेगा, -2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। नाउ y is cot cube theta, y is cot cube theta. So dy by d theta is d by d theta of cot cube. Cot cube means utilize result x power n type, पावर कितना, होल पावर कितना इसका 3 पहले आ जाएगा, एंड कॉट स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन मिलेगा, यानी 3 पहले एक पावर रिड्यूस कर दो, 3 से एक पावर रिड्यूस करोगे तो कॉट स्क्वायर हो जाएगा, 3 कॉट स्क्वायर थीटा। नाउ डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट थीटा, ये थोड़ा मिसिंग हो गया, दिख नहीं रहा है, बट अगली लाइन में जरूर दिख रहा है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या है यहाँ पर इस लाइन में, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, बिकॉज ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। तो दोनों ही पार्ट डी एक्स अपॉन डी थीटा भी नेगेटिव आया, डी वाई बाई डी थीटा भी नेगेटिव आया, डी वाई बाई डी थीटा इज -3 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। नाउ पुट दीज टू वैल्यूज इन फार्मूला, डी वाई बाई डी एक्स इज डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, सब्स्टिट्यूट कर दो दोनों, माइनस माइनस प्लस होगा, 3/2 रह जाएगा, कोसेक स्क्वायर कैंसिल हुआ, कॉट थीटा एक कैंसिल होगा, बट एक कॉट थीटा रह जाएगा। तो फाइनली क्या मिला, 3/2, सिंप्लीफाई करने के बाद 3/2 कॉट थीटा। नाउ यू वांट टू कैलकुलेट डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू π/6। तो हम डी वाई बाई डी एक्स थीटा इज इक्वल टू π/6 इस टाइप से नोटेशन लिखते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स में ब्रैकेट, नीचे साइड में थीटा इज इक्वल टू π/6, जो भी पॉइंट हो वो पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे, और आगे के फंक्शन में वैल्यू पुट कर देंगे और जो भी रिजल्ट आए। अगर ऐसा नोटेशन नहीं देना है तो डी वाई बाई डी एक्स लिखने से पहले ही राइटिंग में एट थीटा इज इक्वल टू π/6 ऐसा स्टार्टिंग में हेडिंग जैसा रिप्रेजेंट कर सकते हो, एट थीटा इज इक्वल टू π/6 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ओके। तो 3/2 कॉट π/6, तो दिस इज π/6, कॉट π/6 की क्या वैल्यू होती है, ये टेबल प्रिपेयर रहनी चाहिए। अगर रेडियन में प्रॉब्लम होता है तो उसको थिंक करो कि एक्चुअली एंगल कितना है, डिग्री कितना है, π/6 मीन्स 30 डिग्री, कॉट 30 √3 होता है। तो जिसको भी प्रिपेयर ना हुआ रहा करे तो ये सब पोर्शन रिवाइज कर लिया करो, टेबल रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो टेबल रिवाइज होने पर यहाँ पर कॉट π/6 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी गई √3, तो फाइनल आंसर हुआ 3√3/2। सेम प्रॉब्लम नेक्स्ट, सेम प्रॉब्लम थोड़ा कंजेस्टेड किया हुआ है, बट प्रॉब्लम सेम है कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड, x is function of t, y is function of t again, dx by dt, it is very simple, derivative of t square is 2t, derivative of t with respect to t is 1, so 2t plus 1, and derivative of 1 is 0, तो 0 लिखो नहीं लिखो चलेगा, 2t plus 1, हमारे पास क्या आया 2t plus 1। y फंक्शन क्या है चेक करो जरा, y इज इक्वल टू साइन πt/2, पाई लिखा हुआ है, t लिखा हुआ है, साइन πt डिवाइड बाई 2, एंगल ऐसे ही कॉस का सेम एंगल है, πt डिवाइड बाई 2। हमें फाइनल आंसर में एट t इज इक्वल टू 1 रखना है, ठीक है। t इज इक्वल टू 1 स्टार्ट में नहीं रखोगे, स्टार्ट में रख दोगे तो सारे फंक्शन कांस्टेंट हो जाएंगे और ऐसे केस में डेरिवेटिव तो 0/0 हो जाएगा, स्टार्ट में नहीं रखना है। एक फाइनल आंसर आ जाने के बाद डी वाई बाई डी एक्स का फाइनल आंसर आ जाने के बाद सब्स्टिट्यूट किया करो। तो डी वाई बाई डी एक्स चेक करो जरा, डी वाई बाई डी टी, वाई फंक्शन साइन πt/2, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस πt/2 एज इट इज़ आया, जैसे साइन थीटा का कॉस थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, साइन एक्स का कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली साइन πt डिवाइड बाई 2, साइन πt डिवाइड बाई 2 convert into cos πt divided by 2. Now applying chain rule, derivative of πt divided by 2 is pi/2, only pi/2, πt ये नंबर πt
पाई टी जो एंगल है उसका ध्यान रखो, साइन को डिफ्रेंशिएट किया, कॉस किया, लेकिन टी की प्लेस पे पाई टी बाई टू है, तो वहाँ पर उसका डिफ्रेंशिएशन चेन रूल लगाना कंपलसरी है, पाई बाई टू लेके आया हो जाओगे इनटू पाई बाई टू। सेम सेकंड पार्ट, कॉस पाई टी बाई टू, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज इन नेगेटिव, माइनस साइन पाई टी बाई टू, ऑल्सो अप्लाइंग चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ पाई टी बाई टू इज पाई बाई टू। टेक कॉमन पाई बाई टू इन बोथ टर्म, कॉस 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 पाई टी बाई टू इंटू पाई बाई टू माइनस साइन पाई टी बाई टू इंटू पाई बाई टू। देख सकते हो दोनों पार्ट में, दोनों ही टर्म में पाई बाई टू सेम एंगल, सेम नंबर मल्टीप्लाई है, तो कॉमन ले लो, इजी गिरेगा। पाई बाई टू ये कॉमन ले लिया, कॉस पाई टी बाई टू माइनस साइन पाई टी बाई टू। अब दोनों ही डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, ये दोनों ही फॉर्मूले में रख दो। डी वाई बाई डी एक्स इज डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू पाई बाई टू कॉस पाई टी बाई टू माइनस साइन पाई टी बाई टू and whole divided by 2t plus 1. Now d यहाँ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं था, तो ऐसे ही ये फाइनल आंसर है, जो भी आया वो फाइनल आंसर है। अब इसमें t की वैल्यू 1 रख दो, डी वाई बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू 1, इन द प्लेस ऑफ t सब्स्टिट्यूट 1, तो डिनोमिनेटर कितना हुआ 2t प्लस 1, t की जगह पर 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 इज़ 2, 2 इंटू 1 इज़ 2 एंड प्लस 1 दैट इज़ 3, ओवरऑल 3 हो गया। पाई बाई टू कॉमन था, वो अपनी प्लेस पे रहेगा। कॉस पाई बाई टू की वैल्यू 0 होती है, वो रख दो 0, साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 होती है, तो 0 माइनस 1 फाइनली माइनस 1। न्यूमरेटर है माइनस पाई बाई टू, ओके, डिनोमिनेटर 3, तो ओवरऑल पाई बाई टू में अगर 3 से डिवाइड करोगे तो पाई बाई 6 हो जाएगा और साइन नेगेटिव होगा, माइनस पाई बाई 6। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर स्टार्ट के प्रिपरेशन है, अच्छी प्रिपरेशन, स्पेशली फर्स्ट एक्सरसाइज की, तो यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम्स बहुत इजी गिरने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, और भी कुछ और एग्जांपल्स। x इज इक्वल टू टी प्लस 2 साइन पाई टी, जो अभी अभी किया वैसे ही है। डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t, दैट इज डी एक्स बाई डी टी, derivative of t is 1 and derivative of sine is cos, 2 अपनी place, derivative of sine is cos, applying chain rule, derivative of pi t is pi only, okay, only pi, chain rule apply करिए, sin का cos हो गया cos pi t and derivative of pi t is pi, chain rule, ये chain rule होता है composite function, जिसको first exercise इसीलिए कहा जाता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्दर एक्सरसाइजेज। जितने भी एक्सरसाइजेज हैं उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज का रोल बहुत ज़्यादा होता है। बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फर्स्ट एक्सरसाइज ही सबसे कम इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएं इस बात की गारंटी नहीं होती है कि उसके क्वेश्चंस आएंगे, बट वो बेस है, वो अगर डाउट रहा, क्लियर नहीं हुआ कॉन्सेप्ट, तो एवरी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होती रहेगी। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि लोग साइन का कॉस कर देंगे, बाद में जो एंगल पाई टी था उसका डिफ्रेंशिएशन करना भूल जाएंगे, तो वहाँ पर मिस्टेक, एक भी माइनर मिस्टेक हुआ तो काफ़ी मार्क्स रिड्यूस होने लग जाते हैं। तो आगे देखोगे डी एक्स बाई डी टी इज़ 1 प्लस 2 पाई कॉस पाई टी। नाउ टेक अनदर वेरिएबल y फंक्शन गिवन एज 3t माइनस कॉस पाई टी, डेरिवेटिव ऑफ 3t विथ रेस्पेक्ट टू t ओनली 3 यहाँ मिलेगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस माइनस होता है तो माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो गया। देखो नेक्स्ट स्टेप में माइनस कॉस पाई टी था, यहाँ पर माइनस कॉस पाई टी था, अब उसका डेरिवेटिव किया गया, डिफ्रेंशिएशन किया गया, साइन पाई टी हुआ। नाउ अप्लाइंग चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ पाई टी is only pi because of derivative of t with respect to t is 1, so multiplying by pi, तो फाइनल आंसर इज 3 प्लस पाई साइन पाई टी, ये है डी वाई बाई डी टी की वैल्यू। ओके, डी वाई बाई डी टी कितना आया 3 प्लस पाई साइन पाई टी, हेंस डी वाई बाई डी एक्स बिकम्स डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, दोनों के वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए गए, एंड डी वाई बाई डी एक्स आस्किंग एज एट द पॉइंट टी इज इक्वल टू हाफ, टी इज इक्वल टू हाफ पे निकालना है तो हाफ टी की जगह पे 1/2 रख दो,
तो देख सकते हो क्या क्या मिल रहा है, 3 प्लस पाई साइन पाई बाई 2, 1 प्लस 2 पाई कॉस पाई बाई 2। अभी वापस से सेम वैल्यू, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, तो दोनों सब्स्टिट्यूट करो, सिंप्लीफाई करो, डिनोमिनेटर ओनली 1 रह जाएगा और न्यूमरेटर में 3 प्लस पाई आएगा और वही फाइनल आंसर भी बनेगा। डी वाई बाई डी एक्स टी इज इक्वल टू हाफ। तो ये आज का लेक्चर बस इतना ही था। नेक्स्ट सेम एक्सरसाइज सेम टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। एक्सरसाइज 1.4 से और भी क्वेश्चन और भी बाकी हैं एंड वो एक्सरसाइज में सेम थिंग होगी, पैरामीट्रिक फंक्शन ही होगा बट प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होंगे। तो उसको सिखाया जाएगा कि प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में हमें न्यू क्या करना होता है। ओके, चलो बाय एवरीवन, बाय।